سے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے لہد میں مجھ سے ہاں لہد میں مجھ سے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قسم اللہ کی قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل ہاں دید کے قابل قیامت میں رسول اللہ قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے قیامت میں رسول اللہ کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ بھی آپ حضرات نے یہ کے بعد دیگر ماہ محرم الحرام شریف کی تقریریں آپ سماعت کرتے ہوئے آئے اور کربلا کا خونی منظر بھی آپ نے سماعت فرمایا ساتھ ہی ساتھ کربلا سے روانگی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد ان کے سر اقدس کو نیزے پر رکھ کر یزیدی کوفیوں نے عبیداللہ ابن زیاد تک پہنچایا عبیداللہ ابن زیاد نے کیا حرکتیں کی آپ نے سماعت فرمائی اس کے بعد عبیداللہ ابن زیاد نے سر حسین اور لٹے پھٹے قافلے کو یزید کے پاس روانہ کیا اور یزید نے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مقدس کو کوفیوں نے لے کر کے یزیدیوں نے لے کر کے جب یزید دمشق پہنچے تو دمشق میں یزید نے ڈھول تاشے اور گلیوں کو سجایا تھا معاذ اللہ گلیوں کو سجایا یعنی ایک خوشی کا اظہار کیا اس کے بعد میں صاحب رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے یزید نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس اور ٹوٹے پھوٹے قافلہ حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب حضرت سکینہ اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے جن سے آج نسلیں چل رہی ہیں جنہیں ہم اور آپ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں اللہ اکبر اسی میں تو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عینی نور تیرا سب گھرانہ نور کا میرے آقا سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جب اس قافلے کو صاحب رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا گیا اور یزید نے کہا اے امام زین العابدین ہم نے آپ کے والد کے طرح آپ کے والد کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا ہے البتہ اگر مجھ سے کوئی ضرورت درپیش ہوگی چاہے پیسے کے معاملات ہو چاہے اور کسی کا معاملہ ہو تو مجھے ضرور اطلاع کرنا بتائیے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام زین العابدین ہیں کہ اپنے بیماری کے عالم میں خیمے میں پڑے پڑے سارے شہیدوں کی لاشوں کا ملاحظہ فرمایا ہے وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتا ہوا یزید کہتا ہے اللہ اکبر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے آنسو آتے ہیں آپ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قافلہ لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ آپ اپنے قافلے کے ساتھ جو بچا ہوا لوٹا پھوٹا قافلہ تھا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو مدینہ کی گلیوں میں کوئی ایک بچہ ایسا نہیں تھا جو مدینہ میں موجود ہو البتہ آپ کے استقبال کے لیے اور ہر ایک محب میں اہل بیت
एक की आंखों में आंसू लिए हुए मदीने से बाहर खड़े होकर के इमाम ज़ैनुलआबिदीन और उनके फुटे काफिले का इंतजार हो रहा था। हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुलआबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा पहुंच रहे हैं। मदीना मुनव्वरा की गलियों में दाखिल होने से पहले आपने रुख को मोड़ दिया। मोड़ने के बाद सबसे पहले अपने नाना जान के कब्र तुर्बत अनवर पर पहुंचे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर पहुंचे, खड़े होकर रोना शुरू किया। पूरा काफिला लुटा फुटा आपका रोज़े रसूल पर खड़ा हुआ है। इमाम ज़ैनुलआबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे हैं। आपके पीछे पीछे पूरा मदीना चल करके रोज़े रसूल पर आ गया था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे हज़रत इमाम ज़ैनुलआबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तुर्बत रसूल पर खड़े होकर के अर्ज़ कर रहे हैं, ऐ मेरे नाना जान, ये लुटा फुटा काफिला तेरी बारगाह में हाज़िरी दे रहा है। अब न तेरा नवासा इमाम हुसैन है, न तेरा नवासा इमाम अब्बास है, न तेरा नवासा अल्लामा अली असगर है, न तेरा नवासा अल्लामा अली अकबर है, नहीं न इमाम अब्बास है, न इमाम कासिम है। ऐ नाना जान, इस काफिले का सरदार बनकर अगर आया है तो इमाम ज़ैनुलआबिदीन है। ऐ मेरे नाना जान, मुलाहिज़ा फरमाए, शहर बानों का क्या होगा, ज़ैनुलआबिदीन का क्या होगा, हज़रत ज़ैनब क्या होगा, हज़रत शहर बानों का क्या होगा। हज़रत इमाम ज़ैनुलआबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होकर नाना जान के कब्र पर रो करके अर्ज़ कर रहे हैं। इतने में आपकी आंख लगती है, आंख रोते रोते आंख बंद होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार फरमाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पुष्ट पीठ पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाज़िरी के बाद हज़रत इमाम ज़ैनुलआबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ की गलियों में तशरीफ ले जाते हैं। आपको घर ले जाया जाता है। कुछ दिन का अरसा गुजर जाता है। कुछ दिन के अरसे गुजरने के बाद तारीख में आया है कि हज़रत इमाम ज़ैनुलआबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला के बाद से आपको कभी किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। यजीद मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। हज़रत इमाम ज़ैनुलआबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, घर जा रहे हैं, ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, घर जा रहे हैं, असर की नमाज पढ़ रहे हैं, घर जा रहे हैं, मगरिब की नमाज पढ़ रहे हैं, घर जा रहे हैं, ईशा की नमाज पढ़ रहे हैं, घर जा रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों से आपने गुफ्तगू बंद कर दिया। लोग घबराना शुरू कर दिए, लोग परेशानी के आलम में आ गए, लोग आपस में चीनी गोलियां करने लगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम ज़ैनुलआबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला के मंजर के बाद में मुस्कुराना बंद कर दिया है, मुस्कुराना बंद कर दिया है। चलो इमाम ज़ैनुलआबिदीन के पास चला जाए, चलो अपने इमाम के पास चला जाए। लोग इकट्ठा होकर हज़रत इमाम के पास तशरीफ लाते हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुलआबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह में भी लोगों को खाना खिलाया करते थे, शाम को भी लोगों को खाना खिलाया करते थे। वो इमाम ज़ैनुलआबिदीन है जिन्होंने इमाम अब्बास के कटे हुए बाजू को भी देखा है, हज़रत इमाम कासिम के बाजू को देखा है, नन्हे अली असगर को भी जामे शहादत नोश करते हुए देखा है। हज़रत इमाम ज़ैनुलआबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन खाना तनावुल, एक दिन लोगों ने खाना बांटने के लिए तशरीफ ले गए। हज़रत इमाम ज़ैनुलआबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, लोगों की कतारें लगी हुई है, लोग बैठ गए और एक दूसरे के थाली में हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम ज़ैनुलआबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दूसरे के थाली में खाना निकालते हुए जा रहे हैं, निकालते हुए जा रहे हैं। एक शख्स आपको देखा और देखने के बाद कहता है, अरे इमाम ज़ैनुलआबिदीन, आपने मुझे पहचाना नहीं। हज़रत इमाम ज़ैनुलआबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगाह उठी और निगाह उठने के बाद जब उस शख्स को देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और आने के बाद रोने लगे। आपने फरमाया, अरे शख्स, तुझे कैसे नहीं पहचान सकता हो, तू वही है ना कि जब करबला के मैदान में सारे लोगों की शहादत के बाद में मुझे जंजीरों से जकड़ा जा रहा था, उस वक्त मुझे पत्थर मार रहा था, उस वक्त तूने मुझे पत्थर मारा था। वो शख्स कहता है, ऐ इमाम ज़ैनुलआबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको तारीख मालूम है, करबला के मैदान में आपको
یہاں نرمی سے پیش آیا جاتا ہے. تو میرے گھر آیا ہے, میں تجھے کھانا نہیں, جو تو چاہے گا میں تجھے وہ کھلاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ.